ہم اس ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے وہ والے بہت ہی زیادہ افسوسناک اور دردناک ویڈیو ہے، اور ایک دوست نے ہمیں وہ ریکمینڈ کی تھی۔ ویسے دیکھنے کے لیے ہمیں تو کافی زیادہ وہ شرمندگی والی بات ہے پاکستانیوں کے لیے۔ تو اس کا ٹائٹل ہے 18 ورشیہ بہادر پوجا نے بلیدان دیا لیکن دھرم دھرم نہیں۔ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، یہ ویڈیو دیکھ کے مکمل دیکھ کے پتہ چلے گا۔ تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا سے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو اوریجنل دیکھ کر ہمارے انسٹاگرام کی آئی ڈی نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پکھر میں شادی سے انکار پر 18 سالہ لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ روہڑی کے قریب پوجا اوڈھ نامی لڑکی کی جانب سے شادی کے انکار پر ملزم واحد بخش لاشاری لڑکی کو اغوا کی کوشش میں ناکامی پر مشتعل ہو گیا اور گولی مار کر لڑکی کی جان لے لی۔ اس لڑکی کو جو میں چھوٹی لڑکی کہوں گا ان کو شادی کے لیے اور فورس کنورژن کے لیے مجبور کیا، جو نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ نہیں ہونا، شادی کرنی ہے یا پھر بائی فورس آپ نے ان کا ریلیجن چینج کروانا ہے۔ تو ان چیزوں پہ شی واز ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ۔ واحد بخش لاشاری نے اس لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ پوجا کماری جو 18 سال کی لڑکی تھی، ہندو برادری کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اس نے اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی جب یہ بچی گھر میں اکیلی تھی۔ تو اس بچی نے مزاحمت کی، بچی نے بڑی دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ان واحد بخش لاشاری جو مبینہ طور پر 5 شخص بتائے جا رہے ہیں، اسلحے سے یہ لیس لوگ تھے۔ آپ ان کو کہتے کہ نہیں، ایک تو شادی کرنی ہے زبردستی والی، اور پھر آپ نے اس مذہب کو بھی ماننا ہے جس کا میں پیروکار ہوں۔ تو یار مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ آدمی بھی کل کو چھوٹ جائے گا، اور ان جب کے سامنے بڑی بہادری کے ساتھ مزاحمت کی، اور ایک اچھی شہری تھی، وہ اس کی جوتی کے برابر بھی یہ واحد بخش لاشاری نہیں ہے جس نے اس کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا ہے۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ پاکستان میں ایک بار پھر دل دہلا دینے والی گھٹنا سامنے آئی ہے۔ پاکستان کے سندھ پرانت کے سکر ضلع میں ایک 18 ورشیہ ہندو لڑکی کی ہتیا کر دی گئی۔ سوتروں کے مطابق 3 ابھیوکت پوجا کماری کو اغوا کرنے کے ارادے سے ان کے گھر میں گھسے۔ ان میں سے ایک ابھیوکت پوجا کماری سے جبرن دھرم پریورتن کر کے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن پوجا کماری نے صاف انکار کر دیا۔ ویرودھ کرنے پر ابھیوکت نے پوجا کماری پر گولی چلا کر اس کی جان لے لی۔ اس گھٹنا نے پاکستان کا گھنونا چہرہ ایک بار پھر پورے وشو کو دکھا دیا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر جسٹس فار پوجا کماری ٹرینڈ کر رہا ہے۔ پوجا کماری کے گھر والوں نے بتایا کہ ہتھیاروں نے ایک بہادر لڑکی کی ہتیا کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ پوجا ایک ایسی لڑکی تھی جس کی پورے سماج میں مثال دی جاتی تھی کہ دیکھو کیسے وہ اپنے پتا کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ وہ بہت بہادر اور ساہسی لڑکی تھی جس نے اپنا دھرم پریورتن کرنے سے بالکل منع کر دیا۔ یقیناً آپ کو اسکرین پہ 2 پکچرز نظر آ رہی ہوں گی۔ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ میں کہوں گا اس کو۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس طرح کے حادثے ہو رہے ہیں، اور یقین کریں میں اکثر کہتا ہوں کہ نیا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پچھلے کو بھول جاتا ہے۔ تصویر میں آپ کو 2 لوگ نظر آ رہے ہیں۔ ایک ہے پوجا کماری، مطلب جن کا تعلق جو ہے وہ سندھ کے علاقے سکر سے تھا، اور 18 سال کی ان کی عمر تھی، اور ساتھ میں جو دوسرے واحد لاشاری نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اس لڑکی کو، جو میں چھوٹی لڑکی کہوں گا ان کو، شادی کے لیے اور فورس کنورژن کے لیے مجبور کیا، جو نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ نہیں ہونا، شادی کرنی ہے یا پھر بائی فورس آپ نے ان کا ریلیجن چینج کروانا ہے۔ تو ان چیزوں پہ شی واز ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ۔ تو جو تصویر میں ملزم نظر آ رہا ہے واحد لاشاری، تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے ذہن میں کیا آیا کہ اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا تو آپ ان کو کسی کو بھی آپ کیا جان سے مار دیں گے؟ کیسے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ تو ضروری نہیں ہے کسی کو آپ
अच्छे लगते होंगे, किसी को नहीं अच्छे लगते होंगे, कोई आपसे इत्तेफाक करता होगा, कोई आपसे इत्तेफाक नहीं करता होगा। ये असल सवाल है, ये असल मुद्दा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस लड़की की जो जान है, इस आदमी ने जो तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, इन्होंने ली है। और मुसीबत ये है कि फिर कहा जाता है जी ये हो गया, वो हो गया। लोग हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी या फिर इंटरनेशनल फोरम्स पे हमें लोग कहते हैं कि यार नहीं जी हम तो बहुत सही हैं, ये है फलां ढिमकान। हालांकि अगर वो लड़की इंटरेस्टेड नहीं थी तो आप कैसे ज़बरदस्ती किसी के साथ कर सकते हैं और उनको मजबूर कर सकते हैं कि आप उनके साथ शादी करेंगे? हाउ इट्स पॉसिबल? और अगर वो नहीं मानेंगे तो आप फिर बंदूक उठाएंगे और एक लड़की के ऊपर आप फायर करेंगे और उनकी ज़िंदगी जो बड़ी कीमती है आप ख़त्म कर देंगे। लेकिन अफ़सोस कि इनको सिर्फ़ अपनी ज़िंदगियाँ बड़ी कीमती लगती है, दूसरे की ज़िंदगी इनको कभी भी कीमती नहीं लगती। और साथ में फिर जब आपका ताल्लुक़ किसी और धर्म से है फिर तो और भी ये चीज़ आसान हो जाती है। मुसलसल मैं तकरीबन 2-3 सालों से अक्सर आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ चीज़ें, वर्क करता हूँ। बहुत सारे दोस्त भी इन इश्यूज़ की वजह से बने हैं, मेरे मौजूद हैं और बड़े अच्छे दोस्तों की लिस्ट में है मेरे वो लोग जो सिंध में रहते हैं और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके साथ। और यकीन करें कि जितनी कोशिश हो सकती है वो करता हूँ मैं कि यार एक मज़लूम के साथ खड़ा होना। वैसे तो किसी के साथ भी, किसी भी मज़लूम के साथ मैं कहता हूँ खड़ा होना ज़रूरी है। जब दूसरे धर्म की थी तो आप वहाँ पे मज़हब तब्दीली का भी उनको कहते हैं, सिर्फ शादी का इशू नहीं होता। शायद शादी के लिए मैं भी कि वो राज़ी हो या ना हो, लेकिन आप उनको कहते हैं कि नहीं जी एक तो शादी करनी है ज़बरदस्ती वाली और फिर आपने उस मज़हब को भी मानना है जिसका मैं पैरोकार हूँ। तो यार मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। ये आदमी भी कल को छूट जाएगा और जब ये जाएगा तो ये जिसे कहते हैं कि विक्ट्री का निशान बनाता होगा कोर्ट में पेश होते हुए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी इन लोगों को बड़ी कीमती लगती है। लेकिन इस लड़की की ज़िंदगी इसके लिए कुछ भी नहीं थी, इसलिए गोली भी मारी। अफसोसनाक वाक़या है, अफसोसनाक खबर है और यकीन जाने कि जब भी ऐसी खबर सुनने को मिलती है तो दिल दहल जाता है। सिंध का इलाका है सक्खर और सक्खर में एक जगह है रोड़ी, यहाँ पर हिंदू आबादी है। वहाद बख्श लशारी ने इस लड़की को अगवा करने की कोशिश की। पूजा कुमारी जो 18 साल की लड़की थी, हिंदू बरादरी के साथ इसका ताल्लुक था, इसने इसको अगवा करने की कोशिश की जब ये बच्ची घर में अकेली थी। तो इस बच्ची ने मुज़ामता की, उसने बच्ची ने बड़ी दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ इन वहाद बख्श लशारी जो मुबीना तौर पर 5 शख्स बताए जा रहे हैं, असले से ये लेस लोग थे, उनके सामने बड़ी बहादुरी के साथ मुज़ामत की और उनके साथ बाकायदा इसकी लड़ाई झगड़ा भी हुआ। तो तैश में आके इस लड़ाई झगड़े में जब उनकी वहाद बख्श लशारी और उनके जो साथियों की कोशिश नाकाम हो गई, देखा कि पूजा कुमारी अब हम इसको अगवा नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने पूजा कुमारी को बड़ी बेदर्दी के साथ गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। बहरहाल इसके ऊपर अब वहाद बख्श लशारी का बचना नामुमकिन है। सिक्योरिटी इदारे हरकत में है, पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द अनकरीब ये पुलिस की गिरफ्त में होगा। एक अच्छी शहरी थी, वो उसकी जूते के बराबर भी ये वहाद बख्श लशारी नहीं है जिसने उसको बेरहमी के साथ कत्ल किया है। तो इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म जा रही है। यकीन जाने ये जो हरकत उसने की है ना, ये बहुत ही घटिया की है। दरअसल ना आप देखे जाए तो पिछली दफ़ा वो ये श्रीलंका वाला मसला बना है और उसके बाद वो एक लड़की नारी पाकिस्तान गई है, वहाँ पे ये हादसा। दरअसल ना ऐसे लोग जो होते नहीं अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए होते हैं, पता नहीं ऐसे लोगों के नाम पे ये मेरा तो ये ख्याल है कि ऐसे लोगों को ना दरमियान लटका के ना आम फांसी देनी चाहिए ताकि ऐसा काम करने से दूसरे जो है उनको भी एक इबरत हासिल हो। यार देखें अगर वो नहीं मान रही, अब वो जाहिर बात है वो अपना धर्म नहीं चेंज करती, को नहीं छोड़ना चाहती, तो आप कौन होते हैं उसको जबरदस्ती? हमारे इस्लाम में भी है कि जबरदस्ती किसी के साथ
साथ करनी नहीं है। हाँ, अगर मुझे तो नहीं लगता अगर वो खुशी खुशी धर्म अपना चेंज करती है या जो भी है करते तो वो ठीक है, अदरवाइज आपको किसने हक दिया है कि इस तरह अगर आपसे वो शादी नहीं करना चाहती तो आप उसको मार देंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि यार कि आज मुझे लग रहा है कि मिनोरिटी हमारे पाकिस्तान में बहुत ही कम मिनोरिटीज हैं, दरअसल लेकिन उनका भी तहफ़्फ़ुज़ इधर महफूज नहीं, तो मैं समझता हूँ ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि अब देखें थोड़ी सी मिनोरिटीज अगर उनको ही आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो फिर क्या आप बातें करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको वाकई सीधा बाजार में ना लटका के इसको फांसी, बल्कि मैं तो कहता हूँ गोलियां मारनी चाहिए ताकि इससे दूसरे भी इबरत लें और इस तरह का आइंदा कोई काम ना हो। क्योंकि हमारे मुल्क में मिनोरिटीज है, हम उनकी इज्जत करते हैं और उनको भी अपना हक है कि हमारे पाकिस्तान में वो अपनी इबादत और अपनी जिंदगी फ्रीडमली वो बसर कर सकते हैं। ये कौन होता है कि ये इस तरह की बातें करता है? इसको तो मैं कहता हूँ कि सरेआम इसकी सजा देनी चाहिए, बात बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। दरअसल में पहले हमें दोस्त बताते थे कि यार आपके ना पाकिस्तान में इंडिया के साथ, हिंदू धर्म के साथ ऐसा सलूक करते, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता था, लेकिन अब मुझे कन्फर्म यकीन हो गया कि दरअसल ना वो जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ जो जदीद तारा डैम है वो जो गरीब लोग सेक्टर में फ्यूडलिज्म है, फ्यूडलिज्म मीन्स के जगीरदाराना निजाम है, उधर जो पसंद आती है और उसको क्या कहते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि हुकूमत को ये सारा निजाम खत्म करना चाहिए। और यही वजह, यही गंदे लोग और घटिया लोग हमारे नाम बदनाम है और हमारे मुल्क पे ये दबा है। दरअसल यही बात है। इसी वजह पहले जब बंटवारा हुआ था तो हिंदू मजहब जो थे ना वो इधर उनकी काफी ज्यादा, मतलब 20% के कितने थे इधर पाकिस्तान में, अब मेरे ख्याल से 2% कुछ रह गए हैं। वो मुझे महसूस हो रहा है इसी हरकतों की वजह से ना जगीरदारा दौर जो हिंदू मजहब पे दबाव डालते थे कि अपना इस्लाम के मजहब चेंज करें, इस्लाम में ये तो बात है मानता, क्योंकि यार देखेंगे अगर इस तरह जबर है ही नहीं हमारे इस्लाम में तो ये इनको कौन हुक्म देता है कि जबर के साथ? बिल्कुल, ये कौन होते कौन है कैसे के साथ? वो नहीं करती, उसका अपना मजहब नहीं करती, आपको क्या है? अगर हमारे साथ कोई जबरदस्ती करेगा तो कहेगा कि यार आप इस तरह इस्लाम छोड़ेंगे, हिंदू मजहब में आ जाए, तो ये कभी नहीं होगा। अगर जबरदस्ती कोई करेगा, मैं तो कहता हूँ कि इसको इस तरह की सजा दे, इस तरह की सजा दे कि पूरी दुनिया में हम उस लड़की के साथ हैं बिल्कुल जिसके साथ ये जुल्म हुआ। ये यार वाकई हमें बहुत अफसोस हुआ है ये खबर जब हमने सुनी है। एक दोस्त ने जब इंस्टा पे ये सेंड की थी तो उसने मुझे पूछा ये क्या शर्मिंदगी आ रही है, हमें वाकई बहुत ज्यादा शर्मिंदगी आ रही है कि ये हर होते रहते हैं जिसकी हमारे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं और घटिया लोग, पता नहीं ये मैं क्या। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे मेरे साथ।